Good morning to everyone here. I won't take your time with formalities. I'm not your host, your anchor, or your narrator. I'm the voice you really hear. I'm the mind behind the smile, the soul behind the silence. Today, I invite you not into a show, but into our world. The world of students, the world of expectations, of silent prayers, of unseen tears. This is not a performance. This is a confession, a journey, a cry, a whisper, waiting to be heard. In the chaos of growing up, report cards, expectations, voices louder than our own, I remember a moment of silence that changed something. A quiet evening, a familiar voice. No lessons, no instructions, just words. Words that understood me when no one else did. Now we have an elocution that speaks not to the world, but to the heart, presenting beneath the silence. In the quiet corners of the playground, where laughter hides behind the trees, little hearts whisper secrets carried softly on the breeze. A smile may dance upon their faces, yet shadows linger in their eyes. For beneath the joyful laughter lays unspoken fears and sighs. Do you see me? They silently question. Do you feel what I can't say? With every glance, a silent story. In every step, a wish to play. In crowded rooms where voices echo, they sit with burdens, big and small, hiding dreams beneath their bravado, afraid to stumble, afraid to fall. Please listen, an unseen chorus calls, through whispered thoughts and tender sighs. For words may fail and silence can wall the needs of hearts that yearn to rise. Let's paint the world with understanding. Let's weave our hearts to hold their hand. For every whisper holds a meaning. In every tear, a helping strand. So let's create a space for speaking. A place where feelings freely flow. Where unheard whispers spark a beacon. And love can help the courage grow. Those words indeed shatter the silence. There are moments when the loudest cries are the ones never spoken of, when the real battles are the ones no one sees. What happens to the battles we fight in silence? Behind smiles, behind nods, behind I'm fine. No dialogue, no sound, just truth in its purest form. Emotions drawn with invisible ink. Presenting before you a story beyond words, a performance that speaks directly to the soul. Silent Sorrows. It is the child's first day at a new school. The child comes home exhausted. He wants to show a drawing he made to his parents.
The pressure to perform well has finally hit. He is studying day and night. The day of the exam has finally arrived. He is very nervous. The child is worried to show his report card. Exhausted with his life, he decides to take a drastic step. The strongest battles are fought in silence. Hidden struggles, unspoken words. The pain we bear remains unseen. Yet, through the darkness, we continue to grow. In silence, they told a story. With silence alone, they made us feel it all. Now, as the silence settles, something new is about to begin. Silence isn't just absence, it's the space where something deeper is about to speak. From stillness, we now move to sound, from what was unseen to what's been unheard. Let the sitar, the flute, and the tabla take over, guiding you through emotions that words could never fully express. Presenting to you Swar Sangam.
final note faded, I found myself holding my breath. Not out of suspense, but reverence. The sitar, the tabla, and the bansuri didn't just play music, they played with emotions. No lyrics, no lines, and yet we understood. But sometimes silence needs to be broken. Stories need to be told. Not through rhythm or gesture, but voice. Presenting before you a powerful expression of that voice. A Hindi play that dares to say what many keep hidden. A story bold and unfiltered. खो गया बचपन. अरे सक्षम, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों? क्या बात है? क्या कहूँ यार, आजकल जिंदगी में तनाव बहुत बढ़ सा गया है। तुम तनाव वगैरह छोड़ो, आओ कोई खेल खेलते हैं, जैसे कि पिट्ठू गरम, खो खो, गुल्ली डंडा। पिट्ठू गरम, खो खो, इन खेलों के नाम तो मैंने कभी सुने तक नहीं। पर ये तो काफी प्रचलित खेल हैं, इन्हें तो बच्चा बच्चा तक जानता है। फुर्सत ही कहाँ है? घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन और ट्यूशन से घर आकर काम ही इतना होता है कि सोने तक की फुर्सत नहीं मिलती। अरे शांत हो जाओ, पर सही ही कह रहा है। आजकल हर बच्चा इसी मानसिक तनाव से जूझ रहा है, चाहे फिर वह पढ़ाई से संबंधित स्ट्रेस हो या घर में किसी प्रकार के माहौल का स्ट्रेस। तो आइए हम कक्षा 10वीं के छात्र आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक लघु नाटिका जिसका शीर्षक है खो गया है बचपन। तो आइए पहले दृश्य में देखते हैं कि एक बच्चा अपने पिता को पीटीएम पर लाया है। बेटा इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा ना? बोल साहब, अब टेंशन क्या लो यार आप लोग। मुझे भरोसा है तेरे पे। आइए मिस्टर हरवाल। हेलो सर, बैठिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर वैसे तो मुझे सब पूरा भरोसा है, पर आप इसका रिपोर्ट कार्ड दिखाइए प्लीज। हाँ जी सर, ये लीजिए सर। ये क्या है सर? सिर्फ 80%? वही तो सर, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इसके 80% आएंगे। किसी टीचर को उम्मीद नहीं थी इसके 80% आएंगे। ये क्या है बेटा? सर मैं क्या बताऊं सर इसकी हालत। घर जाते ही इसको टीवी मोबाइल चाहिए रहता है। स्कूल में भी तो सर यही करता है, पूरा टाइम बातों में लगा रहता है। कभी दोस्त के साथ इधर चला गया, कभी उधर चला गया। पूरा टाइम मैं पढ़ाने में ध्यान देता हूँ, पढ़ता ही नहीं होता ये। सर घर पर भी इसे दोस्तों से बात करने और बाहर घूमने का भी अलग समय चाहिए। यहाँ पर भी सर क्लास के बाहर घूमता ही रहता है। मैं पूरा टाइम लेक्चर दे रहा होता हूँ, ये बातों में लगा होता है। मैं बोलता भी हूँ कि पढ़ ले पर पढ़ता ही नहीं। सर आप बताओ सर, ये भला कोई ये काम टीवी मोबाइल देखने की उम्र है, खेल कूद की उम्र है? अब बच्चा कुछ करियर बन जाएगा तेरा, कुछ अच्छा बन जाएगा, तब करते रहना ये सब मौज मस्ती। मैंने पर मेहनत की तो थी, आपके सामने ही है। तो 80% लाया तू है? आजकल बच्चे बिना पढ़े 90% ले आते हैं और यहाँ भाई साहब की ट्यूशन लगाकर 80% आ रही है। ये देखिए सर, दूसरे बच्चे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं और इसके 80%। 80% में बेटा चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। सर मैं आगे से आपको निराश होने का मौका नहीं दूंगा। मुझसे भी आपसे यही उम्मीद थी सर। चल तू घर चल, देखो वहां देखता हूँ मैं। बच्चे की इतनी मेहनत करने के बाद भी पिता ने और यहाँ तक कि अध्यापक ने उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया। समाज में शिक्षकों का यही कर्तव्य होता है कि बच्चे को सही राह दिखाएं, और अगर वह राह से भटक जाए या थोड़ा बहुत असफल भी हो जाए तो उसे डांट फटकार कर नहीं, बल्कि उसे समझाकर, प्रोत्साहित कर समझाएं ताकि वह भविष्य में सफलता प्राप्त कर सके। तो आइए अगले दृश्य में देखते हैं कि घर का क्या माहौल है। आशा है कि बच्चे की माँ जरूर ममता से बच्चे को समझाएगी, उसके मन की बात को समझेगी। चल तू देखो, मैं देखता हूँ अभी। मैडम देख लो तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाए हैं। Oh my God, थोड़ा धीरे बोलो, तुम्हें कितना नवाब हो रहा है। मैडम 80% लाया है ये, 80%। ये तेरा रिपोर्ट कार्ड है ना? 80%? My God, मैं अपने फ्रेंड से कभी क्या कहूँगी? तुझे शर्म नहीं आई कि तेरी माँ का भी कोई स्टेटस है? शर्मा जी के लड़के के बिना ट्यूशन जाए 99% आए थे। तो मैंने कहा ट्यूशन लगाने के लिए है 80% में डॉक्टर कैसे बन पाएगा? नहीं बता, मैं डॉक्टर बचपन से जा रहा हूँ आपको। क्यों नहीं बनेगा तू डॉक्टर?
नहीं बनना डॉक्टर बनेगा, मुझे पत्रकार बनना था, तो बचपन से बोल रहा हूँ, समझते ही नहीं आप। तेरे पापा डॉक्टर हैं, तेरे दादा डॉक्टर हैं, तेरे नाना भी डॉक्टर है और तू भी डॉक्टर ही बनेगा। नहीं मन मेरा मत। तू पत्रकार बनकर दूसरों की निजी जिंदगी के अंदर देखा दाखी करेगा, हैं? सोच, तूने गलती से किसी नेता के बारे में बुरा बोल दिया या लिख दिया, वो तेरी जान भी ले सकता है, फिर हमारा क्या होगा? अब मेरे सपने में क्या होएगा? मैडम, थोड़ा सा कुत्ते की जगह अपने बच्चे पे ध्यान दे लिया होता ना। तुम तो बस ही करो, तुम्हें कहाँ से अपने दोस्तों से फुर्सत मिलती है? आधी सैलरी भाई साहब पे खर्च कर दो, आधी सैलरी मैम के पार्लर में लग जाती है। क्या बोला तुमने? दोबारा बोला जरा। मारना थोड़ी है मेरे को। चलो, मेरे क्लिनिक का टाइम हो रहा है, पढ़ लेना और इस बार अच्छा रिजल्ट चाहिए मुझे। दिव्यांश, इस बार जो हो गया, अगली बार मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मेरी किट्टी का टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। दरवाजा बंद कर लेना और पढ़ लेना। अभी क्यों जा रहे हो आप? मैं अब तेरे कारण अपनी किट्टी नहीं छोड़ रही हूँ। Come on, Bob. Let's go party. क्यों भगवान, क्या बोला तुझे मैंने? क्या बिगाड़ा तेरा? जो तेरी भक्ति तक नहीं करता तू उसकी तरह अच्छा कर रहा है। मैं तो फिर भी तेरा भक्त हूँ, मैं तो फिर भी पढ़ता हूँ। जो मेरे से कम पढ़ता हूँ उससे ज्यादा तेरे मार्क्स आए, उसके ज्यादा मेरे टेस्ट से अच्छे मार्क्स आए। क्या बोला तुझे मैंने? क्या बोला तुझे? उफ, कितनी अफसोस की बात है कि एक माँ भी अपने बच्चे की दिल की बात नहीं समझ पाई। उन्हें तो अपनी किटी पार्टी व ब्यूटी पार्लर से ही फुर्सत नहीं मिलती और पति पत्नी के झगड़े में बेचारा बच्चा गेहूं में घुन की तरह पिसकर रह जाता है। ऐसी स्थिति में जब बच्चे को घर में प्यार नहीं मिलता, उसे कोई समझने वाला नहीं होता, तो वह अक्सर अपने दोस्तों के पास जाता है जो कि उसका दूसरा परिवार है। तो आइए अगले दृश्य में हम आपको यही दिखाते हैं कि जब वह बच्चा अपने दोस्तों से मिलने जाता है। भाइयों, आजकल वो दिव्यांश नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? वो पढ़ाकू अपने घर बैठा पढ़ रहा होगा। तो कॉल करके यहाँ बुला, हम भी थोड़ा उसको जीने का तरीका सिखाएं। हेलो। हाँ भाई, कैसा है? कितना दिन हो गए, तू मिला ही नहीं। भाई मत पूछ यार। अरे क्या हो गया तुझे? यार भाई कैसे बताऊं यार? एक काम कर, तू हमारे पास आ जा। मैं नहीं आया यार कहीं। अरे तू आ तो सही, तेरा जितना दुख है सारा दूर कर देंगे। एक बार आ तो सही। कहाँ पे है? अंधेरी गली में आ जा।
नहीं कर रहा मुझे जब इन्हें बोला करने का तो करने का। देख, मम्मी पापा को हमसे नंबर चाहिए, टीचरों को नंबर चाहिए, नहीं होती पढ़ाई तो नहीं होती ना, क्यों टेंशन ले रहा बेफालतू की। एक बार इसको सुन के देख ले ना, तुझे जन्नत के मजे आ गए ना मेरा नाम। नहीं करना, मैंने नहीं करना जब मैंने समझ आया। सुन, जल्दी, मैं टिकट दबाऊंगा जल्दी। बड़ी जल्दी है तेरे को जाने की है। शरे आप नशे कर रहे हैं यहाँ पर, शक्ल दिखा। अरे 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 डॉक्टर जरवाल का बेटा है तू। अरे शर्म कर थोड़ी, वो वहाँ लोगों की जान बचा रहा है और तू अपनी जान दे रहा है। जानते नहीं रुक, किया। अभी तेरे बाप को कॉल करता हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर जरवाल, हाँ जी नमस्ते सर। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। मैंने आपको एक लोकेशन भेजी है, जरा यहाँ के देखिए आपका बेटा क्या गुम करा रहा है। सर मेरा बेटा ट्यूशन गया हुआ है। ट्यूशन? फिर तो बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहा है। आइए जरा। सर मैं आता हूँ। सर क्या हुआ? ये दिव्यांश, बेटा दिव्यांश। सर ये क्या है? जो दिख रहा है वही है, शरेआम नशे करता हुआ पकड़ा गया है। दिव्यांश खड़ा। नहीं गया मैं। तू हमारे पैसे बर्बाद करता था, अच्छे नंबर नहीं लाता था, और अब तू इतना गिर गया है कि नशे कर रहा है। पैसे कमाना छोड़िए, पहले इस पे ध्यान दीजिए, हाथ से निकल जाएगा। साहब मैं क्या करूं साहब, मैं 24 घंटे अपने क्लिनिक में रहता हूं जिससे कि पैसे कमाऊं और इसका भविष्य सुधार सकूं, और ये यहाँ पर मेरे पैसे उड़ा रहे हैं। माफ करता हो जाए, माफ। मेरी ऐसी कोई औलाद नहीं हो सकती। दांतों के भूत बातों से नहीं मानते साहब। साहब इसको ना ये ऐसे नहीं मारेगा। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। मारना इलाज नहीं है डॉक्टर साहब, इसका इलाज मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक काउंसलर के पास भेजूंगा, वो इसका अच्छे से इलाज करेंगे। वो मेडिटेशन भी कराते हैं और ऐसे पीड़ितों को भी सुधारते हैं। ये लीजिए, फिक्र ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और सिर्फ आपका लिहाज करके मैं इस बार इसको छोड़ रहा हूँ, अगली बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। चल लड़ाई यहाँ से, परिवार का नाक काट रहा है। इस दृश्य को देखकर मुझे एक शेर याद आता है, जरा गौर फरमाइएगा। इरशाद इरशाद। आजकल युवा कर रहा है नशे होने पर असफल, कि आजकल कर रहा है युवा नशे होने पर असफल। आखिर इन्हें कौन समझाए कि ये नहीं है इनकी समस्याओं का हल। वाह 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 वाह। तो आपने बुरी संगति और नशों का अंजाम तो देख ही लिया। तो आइए देखते हैं एक काउंसलर का इस विषय पे क्या कहना है। तू चुप रह। आप फोन पे बात करते हैं। ये मेरी भाई और ये बेटा देखो। तो देखिए, मैंने आपके बेटे का केस स्टडी किया और जैसा मुझे शक था वो मेंटल प्रेशर का शिकार, which is very common nowadays. But I'm sorry to say, पर इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ाई का उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला कि आज वो इस प्रॉब्लम में फंस गया। मैडम हमने क्या नहीं किया, मैं 24 घंटे तो अपने क्लिनिक में रहता हूँ, मरीजों का इलाज करता रहता हूँ, समय ही कहाँ है मेरे पास कि मैं इसके ऊपर तनाव डाल सकूं।
फिर आते हैं इसके नंबर 80%। मैम नशे की लत कैसे लग सकती है? सोचिए तो सही। और इन मैडम के पास टाइम तो होता ही नहीं है। इनको किटी पार्टी और पार्लर से फुर्सत मिले तब तो ध्यान दे इस पे। हम आप ना इसकी छोड़ो, पहले ना आप इनकी काउंसलिंग कर दो। काम प्लीज तो घर चलो, फिर काउंसलिंग करते हैं। यार तुम दोनों छोड़ के चले जाऊंगा। इनफ इज इनफ, प्लीज काम डाउन। अब अपने बेटे की तरफ तो देखिए। आप अगर इसे लड़ेंगे तो उस पर क्या असर होगा? सक्सेस सक्सेस, मार्क्स, पढ़ाई। सिर्फ मार्क्स और पढ़ाई से ही सक्सेस नहीं मिलती। मैं क्या, पूरी दुनिया जानती हूँ। एकेडमिक फेलियर्स जैसे कि MS धोनी, आमिर खान, दे आर सक्सेसफुल टुडे। व्हाई? क्योंकि उन्होंने अपने इंटरेस्ट को एज अ करियर ऑप्शन चूज किया। प्लीज ऐसे उस पर दबाव मत बनाइए। जो वो करना चाहता है, जिससे उसे खुशी मिलती है, प्लीज उसे वो करने दीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने सच में हमारी आंखें खोल दी। मुझे लगता था कि मैं अभी तक अपने बच्चे को समय दे रहा हूँ, उसे समझ रहा हूँ, पर असलियत में मैंने बस उसके ऊपर अपनी इच्छाओं को थोप रखा था, उस पर एक दबाव बना रखा था। बेटा मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दे दिव्यांश। मैंने तुझे एक माँ की तरह कभी वक्त ही नहीं दिया। इन माता पिता की काउंसलिंग तो हो गई, मगर संसार के हर माता पिता की काउंसलिंग करना नामुमकिन है। आशा है कि आज की हमारी ये लघु नाटिका आप सभी के लिए एक काउंसलिंग की तरह काम करे। तो आप सब अपनी अधूरी आशाएं, अपनी उम्मीदें बच्चों पर ना थोपें। वो उन्हें अपनी रुचि के अनुसार करियर बनाने का मौका दे। उनकी अनसुनी भावनाएं अब अनसुनी ना रहें। तनाव रूपी विष अपने बच्चों के जीवन में ना घोले। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उनके अरमानों को उड़ने दो, उन्हें जीने दो, उन्हें जागने दो। डॉक्टर और इंजीनियर बनने के अलावा लाखों बहुत करियर ऑप्शंस हैं जो आपके बच्चे चुन सकते हैं, बन सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप जो इस भाग दौड़ की दुनिया के अंदर पैसे कमाने में लगे हुए हैं, किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चे के लिए। और अगर आप उस बच्चे को ही खो देंगे तो उस पैसे का क्या फायदा? तो इस दुनिया के अंदर दो प्यार के पल अपने बच्चे के साथ बांटे, जिससे उसका भविष्य और सुंदर और खूबसूरत और ऊंचा है। तो आखिर में यही कहूँगा कि मैं और शहर तो अपने बच्चे को समझ गए, आप और सुनिए। धन्यवाद। And so, the words have been spoken, honest, heartfelt, and unfiltered. They have reached deep within, stirring feelings we often keep hidden. But not every emotion can be captured by speech. Some exist in the quiet spaces between words. Some rise not through language, but through the language of rhythm and that of movement. The silent poetry of dances beyond sound. Now, we invite you to witness a performance. The silence speaks louder than voices, where every gesture tells a story and every movement holds a memory. Presenting before you, Ankahi Baatein.
करके खोल, होठों को करके खोल, सीटी पर जाके बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तबे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ खुमाओ, सीढ़ी बजा के बोल भैया दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी चुनू की रागे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही whispers, wings. Every step, every gesture, lifting what words could never carry. But sometimes it's the melody that carries them the farthest, beyond what movement alone can reach. Some feelings run too deep for dialogue, too gentle for the stage. They live quietly in lyrics, waiting patiently to be heard. As we near the end of this journey, let music take over. Where words fall short, the silence finds its voice in a song. Presenting before you our final piece, a melody that holds everything we felt but never said, everything we lived but never spoke aloud. Presenting before you, Try Everything. Ha
from the start till the end. And in the silence that followed the song, my truth finally found its voice. We began this journey with voices unheard, whispers lost beneath the noise of the world. But through silence, through sound, through movement and melody, we chose to listen. So Jay, you did not just witness a performance. You witnessed a reflection, a mirror of the feelings so many carry quietly but cannot always speak aloud. If even one whisper found a listener here today, then this story has spoken loud enough. Thank you for giving us your time, your attention, and your open hearts. These were unheard whispers, and we hope they remain unheard no longer. Thank you, everyone.